This meeting is about the phase 2 update of the research projects, and we already conducted this meeting, but there were a few people who were unable to connect at that time. And even today, because of the Taukte cyclone, a lot of range related problem, and that is why a few of them have not been able to connect. But today we have Vaishnavi Hake, who will update regarding her topic to us. And we have another new member, Vaishnavi Katke. So she has been given a new topic today. Anshita will announce it now. And we had another volunteer currently, Pranali, but she got disconnected because of some reason. And rest of them have not been able to connect. So as and when time permits, we will definitely have a update meeting with them. They have already updated their research to the research group wala coordinator, and research group coordinator Anshita has already updated it to the central coordinator, so it's working smoothly. But हमारा ये विचार है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो भी ढूंढा हुआ है, जो वॉलंटियर्स ने ढूंढा है, वो चीज सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद वो ऑन पेपर केवल संस्था के पास रहती है। अभी तक हम उसको कहीं पे पब्लिश नहीं करते। हमारे उससे जो क्या बोलते हैं, वो कॉपीराइट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स है जो उसमें छुपे हुए हैं। तो वी डोंट वांट टू पब्लिक इट करंटली। समवन हु इज इंटरेस्टेड, डेफिनेटली वी विल कन्वे। जैसे एक व्यक्ति ने जो वैष्णवी सतीश का टॉपिक था, क्या टॉपिक था उसका? अनम्यूट करके बोलो। यस यस, वैष्णवी हाके वांट्स टू स्पीक। यस यस, water and emotions, water has memory. तो someone puts a comment on the YouTube कि नहीं, this has been proven faulty. तो मैं बोला ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही था। और वो व्यक्ति हमारे कॉलेज का ही है, हमारे जूनियर बैच से है। तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे धनाधन मैसेज भेजा और जो विरोध वाला आर्टिकल है उसका लिंक भेजा और सब काम किया। मैंने बोला आई नो ऑल दिस, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। खत्म। कि उसको दिमाग लगा कि क्या करना है, हम जो करना चाहते हैं इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सो इस तरीके से उसको पब्लिक करने का रीजन ये है, सो दैट टॉपिक्स आर ओपन टू पीपल एंड वट एवर वर्क इज हैपनिंग दैट हैज सम ट्रांसपेरेंसी। उसको हमको कॉन्स्पिरेसी बोल के काम नहीं करना है, it should have some transparency. This is the motive. That is why we want to record the update of each and every individual who is doing it. So Vaishnavi Hake, I would like to request you to please put up your topic. So please tell the headline of your topic and your update, please. Life, even in a dead plant. So we have focused on the sunlight and also the energy which we get from the sunlight, that is the solar energy, and how it also helps in the healing properties. As a medicinal use, also sunlight has been treated from since many years, like a medicine in World War, the American soldiers which were wounded, their wounds were taken to the sunlight and they were getting healed. So क्या बात कर रहे हो? medicine sunlight, and also the government has also started many projects on the solar energy. There is a Ministry of New and Renewable Resources, New and Renewable Energy, Government of India. So this ministry has taken many policies and schemes related to solar energy development in our country. So that also I am having I have taken the PDFs of the policies and the schemes which are being issued by the government of India. So this much I have collected. Now my focus is, in the last lockdown we had done one project live under our group of education, लॉजिक एक्सपेरिमेंट एंड साइंस। उसमें हमने क्या किया था, ये जो अपना डिश टीवी का डिश होता है ना, डिश, वो डिश को लेकर के हमने क्या किया, उसके ऊपर सिल्वर पेंट किया, लेकिन वो सिल्वर पेंट अच्छा नहीं था, तो उसमें प्रॉपर उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो अपना जो कॉइलिंग पेपर होता है ना, फॉइल बनाने के टाइम पे अपन ये करते हैं, वो फॉइल पेपर को उसके ऊपर पूरा चिपका दिया, और उसका जो माइक के जैसा रहता है, एक्चुअली दैट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेज ऑफ द सिग्नल गेट फोकस्ड, और उससे सिग्नल बन के हमको टीवी में वो दिखता है। तो हमने इसका यूज कैसे किया
कि सूरज दादा को फेस करते हुए वो शील्ड को रखा और उसके ऊपर के रेज फोकस हुए वो माइक के जगह पे, और वहां पे हमने एक लीफ को पकड़ा, पत्ती को, झाड़ की जो पत्ती गिर गई थी उसको पकड़ा। और उसमें से क्या मालूम पड़ा हमको? उसमें से हमको ये मालूम पड़ा कि वो जो लीफ का जो सेनेसेंस का प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस है, वो जल्दी है। और हमने ये विचार किया कि जब हमको मार लगता है, स्किन का ब्रीच होता है, स्किन में घाव होता है, तो हीलिंग प्रोसेस क्या है कि वो ऊपर का स्किन निकल जाता है और अंदर से नया स्किन ग्रो होता है। तो यही चीज, तो सेनेसेंस जो है वो स्किन का वुंड हीलिंग है, ये फास्ट होगा। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो आपने बात कही, ये मुझको पता नहीं थी, तो आपने जो ये बताया है, दिस विल बी यूजफुल टू अस इन दैट रिसर्च। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे रिसर्च से रिसर्च की मदद हो जाती है। ओके, माय फोकस विल बी मोर ऑन light of the sun that gets life in some in a plant or an animal. आपने क्रिश 3 मूवी देखा है, वैष्णवी हाके? क्रिश 3 के अंदर वो जो क्या नाम है, वो ऋतिक रोशन का जो पिताजी होता है, दूसरा ऋतिक रोशन, तो वो क्या करता है, ऐसे मिरर्स लगाता है और वो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए सनलाइट वो पौधे के ऊपर फोकस करता है, डेड प्लांट के ऊपर। और वो डेड प्लांट में अचानक से एनर्जी आ रहा है, वो रिवाइव होता है, लेकिन उसमें इतना एनर्जी आता है कि वो उसको बचा नहीं सकता है, एंड देन दैट बर्स्ट आउट। और जब वो विलन के साथ झगड़ा करता है, उस टाइम पे युद्ध करते समय उसके पिताजी उसके बीच में आ जाते हैं टू बिकम द फिल्टर फॉर दैट एनर्जी, so that father dies but Hrithik Roshan gets a lot of energy. I hope you have seen the movie and you recall it. So this idea of sunlight has come from there also. Basically this idea comes from the Vedas, where the description of sun is given in detail, but in a live example of a movie we are also seeing this. So from there it is coming. So the main core point of research, whatever you have found out is extremely useful, that is extremely मतलब worth it. लेकिन अब हमारा जो फोकस पॉइंट है वो इस बात के ऊपर है कि ये जो सारा चीजें हैं, माने ये जो सनलाइट को फोकस करने से कोई जानवर में या कोई झाड़ में उसमें एनर्जी आ करके फिर उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा निर्माण हो रही है, एंड फ्रॉम डेड इट इज बिकमिंग लाइव। या फिर वो बहुत ही मरने के जैसे स्थिति में है लेकिन वो फिर से जीवित हो गया बिकॉज ऑफ एनर्जी। बेसिकली एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। हम बीमार हो रहे हैं मतलब हमारा एनर्जी कम हो रहा है, दिस इज द ग्रॉस कॉन्सेप्ट। पैथोलॉजी हो रहा है मतलब क्या, दैट organ is not working properly. Why? Because nutrition which is supposed to reach there, it is either not reaching, या फिर वहां पे जो पैथोलॉजी हुआ है उसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन माने एनर्जी है ना, एटीपी नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है, इसके कारण उसका डिसफंक्शन है। दिस इज द जनरल ग्रॉस कॉन्सेप्ट फॉर द होल थिंग। सो एनर्जी इज एवरीथिंग, वट एवर इज हैपनिंग इज एनर्जी। सो दैट इज वाई ये एनर्जी से लाइफ, मरे हुए में जिंदा, तो ऐसी एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है उसमें विशेष पावर है, उसमें विशेष पावर है। और उस चीज को हमको हाईलाइट करना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स है, प्रकल्प है या रिसर्चेस जो किए हुए हैं उस बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप अच्छा कर रहे हैं, आप सारे आर्टिकल्स लिंक सब रखिए। और मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था 2 हमको बनाने हैं, तो जो सेकंड वाला है रेफरेंसेस में, उसमें वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके छाप देने का, चाहे वो रेफरेंस वाला पीडीएफ 500 पेज का क्यों ना हो, ऐसा सब है। और आपने जो बोला ना कि आपने 1-2 आर्टिकल्स का साइनॉप्सिस किया है, हर आर्टिकल का साइनॉप्सिस करने की जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल में से जितने भी काम के पॉइंट है उसको आप नोट करो, और सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो सबका मिला के एक साइनॉप्सिस बनाओ। चाहे वो 10 पेज का होता है तो भी कोई वांधा नहीं है, लेकिन उसमें आपको जो भी काम का लगता है उसको आप नोट करो, उसको आप वो साइनॉप्सिस में डालो। और जो भी आप लिखते हो उसका कंपलसरी रेफरेंस होना चाहिए।
बिना रेफरेंस का वो वाक्य को अर्थ नहीं है। तो वो रेफरेंस को उधर ब्रैकेट में नंबर कैसे करना है लास्ट टाइम मैंने बताया था, बराबर है। तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ओके, गुड गोइंग। प्रणाली और वैष्णवी कटके। प्रणाली, आपने टॉपिक लिया हुआ है क्या? कौन सा टॉपिक है आपका? ओके, एश गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो वुड यू लाइक टू अपडेट? पर वो सिनॉप्सिस नहीं बनाया। नहीं, उसका रेफरेंस है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, द सीन कैसा है कि सपोज एश गार्ड इज यूज टू लोअर योर बीपी टू अ नॉर्मल लेवल, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है। तो जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं या फिर जो हेल्थ वाले वेबसाइट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसा स्टेट कर देते, उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल का मैकेनिज्म एक्शन है, उसको प्रेजेंट नहीं करते। तो आपने आपके रिसर्च को 3-4 कॉलम में करना चाहिए। पहले कॉलम में वो ऐश गॉड का कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको लिखना चाहिए। दूसरे कॉलम में ऐश गॉड का वो प्रॉपर्टी जो है, सपोज एंटी हाइपरटेंसिव है या एंटी डायबिटिक है या जो भी है, वो किस कंस्टिट्यूएंट, किस तत्व की वजह से है, वो कंपोनेंट का नाम उसमें आना चाहिए। फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो तत्व, वो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको कैसे, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये तीसरे कॉलम में आना चाहिए। मतलब what it is doing at the molecular level which is resulting in its एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, ये तीसरे कॉलम में आना चाहिए। और चौथे कॉलम में उसका रेफरेंस आना चाहिए। इस प्रकार से ये होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड एक रिसर्च कार्डियोवैक्स का फेज 1 में वैष्णवी सतीश ने किया है, तो आप उसका आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप ये नोट कर लो, ये नोट उसके इसमें भी है। और इस बार शायद अंशिता ने भी ये किया है। अरे प्रणाली डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। अंशिता, उसको आप कन्वे कर देना। तो जैसे आपने इस बार किया है उस हिसाब से, या वैष्णवी सतीश ने लास्ट टाइम किया था, तो या ये आपका क्या, हाँ, या फिर ये जो यश कुलकर्णी है उसने भी एलम का शायद ऐसे ही कुछ किया है। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए, आप देखो तो इजी हो जाएगा। ओके, तो वैष्णवी, प्रणाली आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि जो हेल्थ वाले वेबसाइट्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टेट कर देते हैं ये ऐसा है वो वैसा है। अब ये कोई गीता ज्ञान तो है नहीं कि भगवान ने स्टेट कर दिया, जो स्टेट किया है वो सब सही है, सही है ना। तो ऐसी सब बात है, तो उसके पीछे रेफरेंस रीजन होना जरूरी है। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि आपका माइक बंद है, अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलो। मैंने जो पढ़ा है ना, वही उससे नहीं नहीं, उसके पीछे थोड़े आपको आर्टिकल्स ढूंढना जरूरी है, थोड़ा मेडस्केप पे, पबमेड पे, या उसके अलावा भी दूसरे वेबसाइट्स होते हैं। आप जब ढूंढते हो ना तो आपको डेफिनेटली मिल जाता है। नहीं, हेल्थलाइन यूजफुल है, हेल्थलाइन यूजफुल है, मैंने भी रेफर किया है। मेरे पास भी ऐश बोर्ड के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप देख लेना वही है या दूसरे है वगैरह वगैरह। बट सीन ऐसा है कि उसके पीछे रेफरेंस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई हमारे को क्रॉस क्वेश्चन करे ना, तो उसके ऐसे चेहरे पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया ये लो। और उसका मैकेनिज्म एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कैसे काम कर रहा है, ये रीजन अगर हमको मालूम है ना, तो उसको हम बहुत स्ट्रॉन्चली और एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे होता है, ये क्यों, कैसे, तो ये अगर हमारे पास होए तो बहुत अच्छा हो जाता है। अदरवाइज फिर उसको वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, चलेगा प्रणाली। ओके, गुड डूइंग। आप लोग नए हो फिर भी अच्छा कर रहे हो। और अंशिता, आप वो टॉपिक का नाम बोलो जो वैष्णवी कट के लेने वाली है। क्या नाम बोला था उसका?
the damage compared to vaccines that are traditionally developed? मतलब ट्रेडिशनली डेवलप तो एनिमल वाले वैक्सीन है, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में और पीएसएम में डिटेल में सीखते हो, माइक्रो में तो बहुत ज्यादा डिटेल में सीखते हो वैक्सीन डेवलपमेंट। तो जो ट्रेडिशनली डेवलप्ड वैक्सीन है वो सारे मोस्ट ऑफ देम आर एनिमल बेस्ड, तो उससे ज्यादा प्लांट में बने हुए वैक्सीन ये क्या कम कंटामिनेटेड होते हैं ऐसा मानना है। तो इस हिसाब से उसके ऊपर आपको थोड़ा ढूंढना है, थोड़ा सा ऑड टॉपिक है, थोड़ा सा हटके टॉपिक है, और एंट्री वाले बैट्समैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी टॉपिक है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें झंडे गाड़ते हो ना तो आप पूरी वैक्सीन इंडस्ट्री को उलट पलट कर सकते हो, इतना पावर है। तो देखो, yes, that's the spirit. Very good. So absolutely this will work, I think. So you can take a week's time, you hunt for the articles related to the टॉपिक क्या है उसको कंफर्म करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स को पूछो, एक दूसरे को पूछो, या फिर अगर कुछ बहुत ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, उस हिसाब से हम क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट अपडेट मीटिंग में अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। अंशिता, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज के और पहले के फेज 2 के अपडेट मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं उनका नाम लिख करके मेरे को व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के ऊपर टेक्स्ट करो कि पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू अपडेट फॉर फेज 2, और उनके 1 2 3 4 जो भी लोग हैं उनके नाम लिखो और उसमें 2 पार्ट बनाओ, जो स्कूल ऑन व्हील्स एंड नॉन स्कूल ऑन व्हील्स। तो स्कूल ऑन व्हील्स वाले 2-3 जो भी मेंबर है उसको उसमें लिख दो स्कूल ऑन व्हील्स के अंडर, और नॉन स्कूल ऑन व्हील्स वाले उसको उसके अंडर लिख दो, जैसे आर्यन है या और जो भी व्यक्ति हैं सभी, तो उनको लिख दो और टोटल कितने वो ग्रुप पे आप भेज दो और आज का मीटिंग अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई हाँ लिखो ना, क्यों, वो कोई अलग है क्या, दूसरे ग्रह से आए हैं क्या वो? एक अंशिता, एक बात ध्यान में रखो, जब आप एक कोऑर्डिनेटर के जैसे काम करते हो तो उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं हो जाता है, कोऑर्डिनेटर सभी के लिए समान है। आप बड़ों मतलब जो आपसे बड़े मतलब कोई बहुत बड़े नहीं है, 1-2 साल 4 साल बड़े हो गए तो क्या बड़े भाई बहन रहते हैं ना हमारे घर में, उसको अरे तुरे बोलते हैं ना हम, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम किसी को अरे तुरे नहीं बोल रहे, वी आर वर्किंग प्रोफेशनली, तो हम सबको सर मैडम ऐसा करके ही बोल रहे, लेकिन इतना शाय नहीं होना वो बात में। आप कोऑर्डिनेटर बोल के काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे, कोऑर्डिनेटर के क्या बोलते हैं काम से आप जो भी पूछ रहे हो आप सही करो, आप उसके ऊपर कमांड थोड़ी कर रहे हो ऐसा कर वैसा कर ये बताओ, आप एकदम पोलाइटली और उसको सही से पूछ रहे हो, खत्म। इतना विचार करने की बात ही नहीं है, दूसरे कॉलेज के हैं, सीनियर है, 17 बैच के हैं क्या 19 बैच के, नथिंग मैटर्स, इफ दे आर 10 years ऑल्सो एल्डर टू यू, रियली डजंट मैटर। ओके, हाँ, ये डिग्निटी ऑफ लेबर, सभी लोग समान है, सभी में भगवान है, बात खत्म हो गई, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है क्या नहीं? ठीक है, चलेगा, ओके। सो विद ऑल दिस वी एंड द मीटिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू। क्वेरी है प्रणाली को, कुछ क्वेरी है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते तो पूछ लो वैष्णवी। पढ़ते अगर ब्लड प्रेशर को वो मेंटेन करना है आजकल, तो गूगल से ही हम लोग को रेफरेंसेस मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा अलग अलग वर्ड्स यूज करके नाम, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ एश गोल्ड, या हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ एश गोल्ड, या हाउ एश गोल्ड इज हेल्दी, मॉलिक्यूलर लेवल मैकेनिज्म ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ एश गोल्ड, ऐसा करके खोद के ढूंढना पड़ेगा बेसिकली, you have to dig a lot. Okay, so Anshita will help you with that, yes or no? You can ask her कि अभी वो फेज 2 में कर रहे हैं, उनको पता है कैसे ढूंढना है, कैसे कीवर्ड डालना चाहिए, क्या करना, तो उस हिसाब से वो आपको हेल्प करेंगे।
आपके दूसरे भी कोई कलीग्स है जो केवाई के रिसर्च ग्रुप में, आप उनको भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, ओके, चलो, वी एंड द मीटिंग। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।